health division, I say to all my friends, colleagues, family, and friends that we should have this thing in our mind that we should try our level best not to get infected. But if unfortunately I get infected, I should make it a point that I should not get others to get infected from me. So if I am safe, all are safe, or if you are safe, I am safe. If this is the strategy which we are going to follow for the COVID times, and I think it's a huge learning for all of us for the rest times to come. So what I'm going to do from now is it's few slides which I would like to share. And as Mr. Thapa said, it would be good that if we start having more interactions, more queries, questions, discussions after the end of this presentation. So Mr. Thapa, can we go to the next slide? So because I'm not able to handle these slides from here. Okay, so currently every one of us know about what we call as the COVID-19 because lot of information is there in media, lot of information is there in we are starting calling it as infodemic. So I will take you only 5 points I will say from COVID-19 just to revise. Being a professor, I used to revise every time when there are series of questions or series of lectures. So if you look at COVID-19, the onset of the disease is IP. IP we call it as incubation period, and it says that currently during the second wave, it is said to be a bit more infectious और more communicable in comparison to the back year. तो इसे ऐसे समझ सकते हैं इस साल जो बीमारी आई है वो पिछले साल की बीमारी में ज्यादा इन्फेक्शियस है. इट्स नॉट अबाउट फेटेलिटी, मौत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बात करें इन्फेक्शन की. सो इंक्यूबेशन पीरियड ये बता रहा है कि जिस दिन आप किसी इन्फेक्टेड आदमी से मिलते हैं उससे दूसरे दिन से 14 दिन तक आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है. सो सिम्टम मतलब पहला जिस दिन आप उससे मिले उससे दूसरे दिन आपको ये इन्फेक्शन का सिम्टम आ जाएगा. सो इट इज इंक्यूबेशन पीरियड विच सेज दैट सिम्टम स्टार्ट्स फ्रॉम 2 to 14 days. So usually it says that अगर एवरेज की बात करें तो 5 to 7 days होता है. So which is the classical symptom? And the classical symptom is fever, and which is not very high. It is usually 100.4 degree Fahrenheit and above, and we call it as 38 degrees Celsius if in terms of Celsius. So if we look at symptoms, currently we all know that it is a disease which basically infects or affects our lungs. So any system which is affecting lungs would have symptoms like dyspnea, cough, and related to rhinorrhea and all. But this second wave, unfortunately, is also having different symptoms like diarrhea, abdominal pain, conjunctivitis. So these are also seen. If we say about signs, signs are those which a clinician elicit, यानी कि वो जब एक मरीज कुछ शिकायत लेकर कुछ symptoms लक्षण लेकर हमारे पास पहुंचता है. So what are the signs which we elicit? Tachypnea means, tachypnea, decreased. These are like when we say decreased diseased breathing, मतलब breathing बहुत तेज हो गई है, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, and we say that for example respiratory rate is more than 24. I'll go in that also. तो ये जब होने लगता है तो इसका मतलब हो जाता है कि हम उसे एलिसिट कर रहे हैं. Decreased oxygen saturation, as it is written down also, because that is also a very important point, that because oxygen saturation, आज सब जगह हम जानते हैं oxygen is the main part which we are actually concerned about. So हमारा oxygen saturation जब कम होने लगता है, that is a sign. And warning sign, as it is written here, that for all of us to understand, for a public health benchmark, we are saying SpO2, if it is less than 94%, it's a warning sign. But what are the complications? We'll deal with that also in rest of the presentations. It's about acute respiratory distress syndrome. कभी कभी एरिथमिया होने लगते हैं. एरिथमिया मतलब जो हमारे हार्ट की जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाती है. हमारा हार्ट एक अलग तरीके से बीट करता है, जब उसमें रिदम उसका डिस्टर्ब हो जाता है वो एरिथमिया कहलाता है. और लंग्स की पल्मोनरी इम्बोलिज्म कहते हैं कि जब आपने सुना होगा कि भाई ऐसा सुनने में आया कि कुछ खून का थक्का जमा और वो कहीं जाकर रुक गया है और वो वहां पर परेशानी कर रहा है, सिम्टम्स दे रहा है. अक्यूट स्ट्रोक उसे कहते हैं, जैसे पैरालिसिस की बात होती है या पैराप्लीजिया की बात होती है. सो दीज आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस. सो कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो कोविड-19 का मतलब हुआ ये सारी चीजें ऑनसेट से लेकर और जब हमने कॉम्प्लिकेशंस की बात की. तो बेसिकली
5 से 6 दिन का इसका सिम्टम आता है, बट 2 दिन से लेकर 14 दिन तक आ सकता है। ये बात उस स्लाइड में आपको याद रखने की है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वी ऑल नो अबाउट, इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। ज्यादातर मोड ऑफ ट्रांसमिशन सांस के रास्ते है, उसी के लिए वो 2 गज की दूरी, या हमने बोला कि भाई आपको जो 6 मीटर्स डिस्टेंस है दैट हैज टू बी मेंटेन। एंड द अदर वन इज अबाउट हैंड हाइजीन, बिकॉज थ्रू हैंड्स when there is an infected particle, it goes to our nose, and through nose it again enter into our body or system of respiration. So if you look into this entire slides, it says that sneezing, coughing, infected droplets touching each other, and then from that touch, if it move to the nose, and from nose again to respiratory system. So mode of transmission, more or less respiratory. So can we go to the next slide, please? इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन से ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारा हाथ जो हम बार बार कहते हैं, तो आधे लोगों को लगता है क्या हाथ में स्किन के रास्ते, खाल के रास्ते अंदर जा रहा है? बिल्कुल नहीं है। जो बार बार अपनी नाक छूते हैं, हम आंख छूते हैं, तो ये हमारे कुछ मेम्ब्रेन्स हैं, इसके थ्रू ये अंदर चला जाता है। अब टेस्ट की बहुत बात हो रही है, ये स्लाइड मैंने जानबूझकर रखी। 3 टेस्ट हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, बहुत संक्षिप्त में, बहुत स्मॉल शॉर्ट में। एंड दीज आर मॉलिक्यूलर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट एंड एंटीबॉडी टेस्ट। इफ यू लुक एट दीज 2 टेस्ट जो इनिशियली आपको दिखाई दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर और एंटीजन, इसमें नाक से कुछ सैंपल लिया गया है। इसको हम एक तरह से कह सकते हैं ये जेनेटिक मटेरियल लिया जाता है। हमारा क्या है, हमने मतलब ये जेनेटिक टेस्ट है, इसमें कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ प्रोटीन्स टेस्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज सपोज टू बी दी बेंचमार्क, यही है जिसको हम पॉजिटिव आने पर किसी को कहते हैं कि उसको RT-PCR पॉजिटिव आया है और उसको कोविड-19 हुआ है। The third one test, which is the antibody test, it is about serosurveillance. तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन तीनों में से डायग्नोसिस किससे बनाते हैं, और फिर तीसरे टेस्ट की क्या वैल्यू है, एंटीबॉडी टेस्ट की। एंटीबॉडी टेस्ट की वैल्यू सिर्फ सीरो सर्वेलेंस में बताने के लिए कि देश के कितने लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं या देश में कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है। इट इज समथिंग अबाउट दिस। कोई पहले इन्फेक्ट हुआ है तो उसमें एंटीबॉडीज बन जाती हैं, उन्हें IgG कहते हैं, वो हम चेक करते हैं। अगर कोई अभी इन्फेक्ट है तो उसमें IgM होता है। Molecular test or antigen test is a diagnostic test which tells us about कि whether currently I am infected or not. जैसे इन दोनों टेस्ट में लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर टेस्ट जिसको हम RT-PCR कहते हैं, इसको आने में थोड़ा समय लगता है रिजल्ट इसका, तो इसको यूजुअली 24 आवर्स 48 आवर्स, बहुत जगह पे इतना भी लग रहा है, बट 24 आवर्स लग जाते हैं। बट एंटीजन टेस्ट इज सेड टू बी गुड टेस्ट, बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि ये जल्दी टेस्ट तो देता है, जो पॉजिटिव आता है वो पॉजिटिव ही है, बट जो नेगेटिव आता है, प्लीज रिमेंबर इसमें फॉल्स नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसको हमें दोबारा RT-PCR पर लगाना होता है। सो क्वेश्चन उठता है फिर ऐसे टेस्ट किए क्यों जाते हैं, एंटीजन टेस्ट की जरूरत ही क्या है? इट्स फॉर डॉक्टर्स। जब हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको इमीडिएट सर्जरी चाहिए, तो हम पहले उसे एकदम क्या करते हैं, उसको स्क्रीन कर लेते हैं एंटीजन टेस्ट से। अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसे पॉजिटिव मानते हैं बिल्कुल, अगर नेगेटिव है तो भी, लेकिन हम पॉजिटिव में जो प्रोटोकॉल्स है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नेगेटिव में भी दो प्रोटोकॉल्स आर केप्ट, बट अगेन देयर इज अ डिफरेंस। नीचे एक मैंने लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, आजकल सब लोग CT वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है 2 तरीके की वैल्यू है, एक CT वैल्यू और एक होता है CT स्कोर, विच इज जो HRCT से आता है, जिसको हम हाई रेजोल्यूशन CT कहते हैं लंग्स का। बट ये CT वैल्यू क्या होती है, दिस CT वैल्यू इज ऑफ RT-PCR। सो प्लीज रिमेंबर that if it is less than equal to 35, it is said to be a kind of a viral load. So लोअर देन इट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप, 35 के जितने नजदीक होगी वैल्यू उतना लो वायरल लोड है, 35 के जितनी दूर होगी, लाइक फॉर एग्जांपल 10 है अगर किसी की वैल्यू, CT वैल्यू इन RT-PCR, इट इज सेट टू बी अ हाई वायरल लोड। बट बिलीव मी, इसको बहुत जरूरी नहीं है अगर ये आपको CT वैल्यू नहीं समझ आ रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट फैसिलिटी है फ्रेंड्स, जैसे हमारा एम्स हुआ, हम लोग उसमें CT वैल्यूज नहीं बताते हैं, हम सिर्फ ये बताते हैं RT-PCR पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन जो प्राइवेट लैब्स हैं वो इनकी वैल्यूज बताती हैं। सो कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अभी तक अगर हम बात करें तो हमने बात की है कि भाई ये बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसमें कौन से टेस्ट कराए जा रहे हैं और इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब एक और चीज सुन लेते हैं, क्योंकि आजकल आप सबको पता है दीज आर सम ऑफ द वैल्यूज व्हिच आर बीइंग रेज्ड एवरी टाइम, दैट व्हाट आर द अदर लेबोरेटरी पैरामीटर्स व्हिच वी शुड नो ऑल अबाउट, एंड दिस इज अबाउट 3 थिंग्स or 4 things I will say. One is inflammatory markers, friends. Inflammatory markers कुछ नाम अब सबको याद हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है मीडिया के थ्रू, एंड दीज आर CRPs, IL-6, LDH, NL रेशो, डी डाइमर एंड कार्डियक ट्रोपोनिन। आप मुझसे पूछ सकते हैं इनकी क्या वैल्यू है, इतनी सारी चीज़ें कराने की ज़रूरत होती है?
तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इनकी एकदम ज़रूरत नहीं है अगर आप इनिशियल 7 दिन की बात कर रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा ये बीमारी अपने आप को कैसे आगे लेकर चलती है। लेकिन 7 से बाद अगर 7 दिन के आगे किसी को बुखार आ रहा है, किसी को शिकायतें बनी हुई हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि फीवर चला गया था, आप बिल्कुल सही हो गए हैं, लेकिन उसके बाद आपको दोबारा फीवर आ गया है, तो डेफिनेटली ये वैल्यूएबल है, इन टेस्ट को हम कराते हैं। और इनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में यदि हमें कोई चेंजेस मिलते हैं तो वी डेफिनेटली आस्क फॉर वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन इन मेडिसिन, जो हम आगे अभी बात करेंगे। Lymphocyte platelets, they are also very important because they show significantly lower levels in severe patients. So these are also done. Now let us have a word on CT कि भाई CT का कितना रोल है। सब लोग कह रहे हैं कि एक CT करा लीजिए और CT से हम पता करके बता देंगे स्कोर कितना है। कोई लोग कहेगा 10 के ऊपर है, 10 के नीचे है, 24 के आसपास है, क्या इसका वैल्यू है। फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जो लंग्स होता है उसकी स्थिति CT बताता है, चार्ट CT। बट वॉट यू नीड टू रिमेंबर इज, अगर हम सीटी अर्ली स्टेज में कराएंगे जब वायरल रेप्लिकेट हो रहा होता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा आ सकती है, बट इट हार्डली मैटर्स बिकॉज वो सीटी की वैल्यू डिरेंज आएगी, उससे घबराने की बात नहीं है। सीटी वैल्यूज हम कब करा देते हैं, वही अगेन 7 दिन के बाद अगर आपको लग रहा है डेटोरिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है या क्लिनिकली जो डॉक्टर है उसे लगता है कि नहीं, शुरुआत में भी जिस हिसाब का फीवर है उस हिसाब से इनकी SpO2 मेंटेन नहीं हो रही है, तब हम सीटी कराते हैं। So CT की वैल्यू न्यूमोनिया प्रोग्रेशन में है एंड वी रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू नॉट टू गो डायरेक्टली टू CT बिकॉज इट इज नॉट वेरी हेल्पफुल, रादर इट इज अ हार्म, क्योंकि आप वहां मत जाएं जहां पर पेशेंट्स जा रहे हैं इतने CT कराने के लिए। इट्स बेटर टू अवॉइड CT इफ इट इज नॉट बीन एडवाइज्ड बाय योर क्लिनिशियन। सो CT वैल्यू जो होती है वो जरूरी है, बट ओनली फॉर दोज जिनका 6 से 7 दिन या 5 से 7 दिन फीवर में निकल गए हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, उनके क्लिनिशियन को ऐसा लगता है कि इनका CT करा लेना चाहिए। ओनली इन दोज केसेस CT शुड बी डन। सो कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मिस्टर थापा, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। या सो अब आते हैं, सॉरी इसके पहले वाली स्लाइड पे आते हैं। सो इसके पहला जो है बिफोर दैट, सो इफ यू कैन टेक अस टू दैट, इसके नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर हम कैटेगरी की बात करें तो ये जो कैटेगरी है ये 3 तरीके से कैटेगरी है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। लेट अस टेक वेरी स्मॉल थिंग फर्स्ट, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अब मैं इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, और शायद क्योंकि हम सब मैक्सिमम लोग साइंस कहीं ना कहीं पढ़कर आए हैं तो इसे हम इस तरह से समझते हैं। ये पूरी बीमारी अपने आप को 3 फेजेस से लेकर चलती है। पहला, जिसमें वायरल रेप्लिकेशन है बॉडी में। दूसरा, जिसमें इम्यूनिटी बॉडी डेवलप कर रही है। और तीसरा, जिसमें बॉडी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी डेवलप कर रही है, जिसे इम्यून की हाइपर रिएक्शन कहते हैं। सो पहले समझते हैं जब बॉडी वायरल रेप्लिकेशन में है। फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन बॉडी इज इन फर्स्ट फेज, व्हेन देयर इज अ वायरल रेप्लिकेशन, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वायरल रेप्लिकेशन जब बॉडी में होगा तो फीवर आएगा। वो जो इनिशियल 1 2 3 4 डेज है, दैट इज अ डे ऑफ डिजीज जब वायरल रेप्लिकेशन हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। बहुत जगह मैंने देखा, हम सब लोग देख रहे हैं, डॉक्टर्स भी, आप भी देख रहे होंगे कि लोग कह रहे हैं स्टीरॉयड घर में यूज करने लग जाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वायरल रेप्लिकेशन का फेज है। ये शुरुआत के 3 से 5 दिन का फेज है। अगर इसमें स्टीरॉयड जैसी चीज दी गई तो बॉडी में नुकसान बहुत होगा, फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में वायरल रेप्लिकेशन हो रहा है और बॉडी उसके अगेंस्ट वर्क करना चाह रही है। उसने उसे एक फॉरेन एंटीजन की तरह से लिया, फॉरेन इंडिविजुअल की तरह से लिया, एंड बॉडी इज ट्राइंग टू एक्ट अगेंस्ट दैट। अगर मैं स्टीरॉयड दूंगा तो बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी और बॉडी उससे लड़ नहीं पाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट दिस फर्स्ट इनिशियल फेज which is usually 4 5 6 days, we should be having this thing in mind कि अभी मेरी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहनी चाहिए क्योंकि अभी मुझे इससे लड़ना है। सेकेंड फेज आता है जिसको हम कहते हैं इम्यून रिएक्शन। 4-5 दिन में बॉडी को ये पता चल जाता है कि ये कोई फॉरेन इंडिविजुअल है जो भी अंदर आया वायरस, और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और वो इम्यून रिएक्शन करके क्या करते हैं, थोड़े थोड़े मार्कर्स डिरेंज होने शुरू होते हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आफ्टर दिस थर्ड फेज, फॉर एग्जाम्पल, if I am not well, even after 7 or 8 days, 9 days, my fever is continuing, then we are probably moving into the third phase. And what is the third phase? When my body is hyper in my immune reaction. And when it is attacking against this virus, it is also attacking against my own body. उसी को कहते हैं हम cytokine storm. So that cytokine storm is actually that which is a bit difficult to control, or where we need ICU, CCUs, or different therapies which you must have heard.
तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं तो क्या हम वेट थोड़ी करेंगे तब तक का कि हम साइटोकाइन स्टॉर्म में चले जाएं? So the answer to this question is that 80 to 90% of people, they recover in first phase or second phase only. So they don't land up in the third phase. So please try to understand that only 10% unfortunate cases or 15% unfortunate cases only land up in the third when there is a hyperimmune reaction, and when we call it as a cytokine storm. So based on all these knowledge of disease, we have classified into three: mild disease, moderate, and severe disease. So what is mild? When we have just upper respiratory tract symptoms of fever without shortness of breath or hypoxia. But when I say moderate disease, very particular two things are to be noted. Number one, respiratory rate, which is more than 24 per minute. And now we all know about the pulse oximeter. एंड पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में भी बताना चाहूंगा. पल्स ऑक्सीमीटर को इस उंगली पर, मिडिल फिंगर पर लगाना चाहिए, नॉट दिस. So I've seen patients using it on this finger. No, it's not the correct way. So when we put my pulse oximeter on this finger, I found that SpO2 is less than 94%. So on room air. So if it is that, it is moderate disease. And what is severe? When respiratory rate is more than 30 and SpO2 is less than 90, it is severe. It needs immediate hospitalization and it needs to go to ICU. So you may ask us, तो moderate disease वाले मरीज कहाँ रहते हैं? Moderate disease वाले मरीज को हम wards में अपने भर्ती करते हैं, which are the stable wards. So can we go to the next slide, please? So अब मैनेजमेंट की बात करेंगे हम, क्योंकि क्विकली, एज आई प्रॉमिस्ड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम विल बी अ बिट फास्ट, बट जहां आपको प्रॉब्लम लगे और आपको लगे मैं थोड़ा तेज हो रहा हूं तो आप मुझे कह सकते हैं कि आप थोड़ा स्लो हो सकते हैं. So what are the management of COVID-19 home isolation? So try to understand these four things. Number one, symptoms. Only mild, very mild or asymptomatic patients are supposed to be there in home isolation. So I've told you, mild will be kept in home isolation, moderate will go to stable ward, and severe will go to ICU or CCU. So only mild, very mild or asymptomatic. And you will say, who will assign these cases as mild? As I told you, you may yourself, or यू मे आस्क योर क्लिनिशियन और फैमिली फिजिशियन. वो जो मैंने चार्ट बताया, सिर्फ मेरे को थोड़ी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही है, मेरा रेस्पिरेटरी रेट 24 के नीचे ही है, मेरे को टेम्परेचर भी 100 के नीचे ही आ रहा है, और मेरा जो SpO2 है वो 95, 96, 97 ऐसे बना हुआ है. सो आई मे स्टे एट होम. फैसिलिटीज एब्सोल्युटली आप घर में रुक सकते हैं, बट एक्चुअली घर में उस समय रुकें व्हेन योर हाउस इज ऑफ दैट कैपेसिटी वे यू कैन अफोर्ड, वे यू कैन हैव योर ओन टॉयलेट. Yes, you should always be in contact with some doctor. बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब मॉडरेट में हम शिफ्ट कर रहे हैं तो हम अपना फैमिली डॉक्टर भी हमने अपने पहले से फिक्स नहीं किया हुआ था. एटलीस्ट किसको बात करें, टेली कंसल्टेशन और मेडिकल सर्विसेज शुड बी देयर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर शुड ऑलवेज बी अ केयर गिवर इन योर होम. अगर मैं अकेला रहता हूँ, मैं बैंगलोर में रहता हूँ, पुणे में रहता हूँ, आई एम एन अलोन पर्सन and I want to stay at home, I don't have any caregiver, so we actually request such patients not to stay at home, because if there is any deterioration in the condition, we will not be able to monitor or track this patient. So can we go to the next slide, please? So in home isolation, as I said, only those patients who are mild, very mild or asymptomatic. Now this question I've kept very intentionally, because this is a question which has been asked in each and every discussion when we have, that I don't have different bathrooms or washrooms in my home. हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े घर ज्यादातर नहीं है जहां पर बाथरूम्स अलग अलग हैं. तो क्या मैं बाथरूम अगर सिंगल है तो भी मैं रह सकता हूँ होम आइसोलेशन में? गाइडलाइन कहती है कि कोशिश कीजिए कि अगर आप शिफ्ट कर सकें, बट अब जैसे हॉस्पिटल्स फुल हैं तो हम भी नहीं चाहते कि हॉस्पिटल्स में आप आए. सो व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू इज, you can disinfect this toilet facility. I'll tell you how. So can we go to the next slide? So what can you do? You can take 1% of sodium hypochlorite. Now it is available और घर में रखना भी चाहिए. 15 grams bleaching powder आपको लेना है और 1 लीटर पानी में डालना है और इसको 24 hours में यूज करना है. So every time when the patient is going to use the washroom or this bathroom facility, it should be cleaned by this bleaching powder, because it's have bleaching powder में क्या होता है, इसमें एक ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी है और ये क्या करेगा, उससे इसे प्रोटेक्ट करेगा. बिकॉज यू मे आस्क मी दैट क्या स्टूल से प्रॉब्लम होती है? इस पे बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं और बॉडी फ्लूइड्स में ऐसा माना गया है दैट देयर मे बी चांसेस ऑफ गेटिंग इट. इवन जो सीवेज है उसमें इस वायरस को ढूंढने की बात चल रही है. सो इट इज बेटर इफ वी कैन डिसइंफेक्ट द टॉयलेट बाय 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन. सो कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज?
नाउ अब ये क्वेश्चन आ रहा है, अगर मैं घर पे रुका हुआ हूँ, बहुत घबरा गया हूँ, मुझे क्या पैरामीटर्स अपने हमेशा ऑब्जर्व करने चाहिए? सो प्लीज दिस इज फॉर ईच वन ऑफ यू टू टू रिमेंबर कि हमारे घर में अगर कोई पेशेंट है तो पहली बात तो मुझे एक डायरी उसी वक्त मेंटेन कर लेनी है। हमारे घर में बच्चों की नोटबुक्स हैं या हमारे पास डायरी है, प्लीज डायरी में मेंटेन करिए। अपनी याददाश्त पे मत चलिए कि नहीं मेरे को कल 100 बुखार था, आज मेरे को 101 है, 6 घंटे बाद मेरे को इतना था। नो नो नो, वी डोंट वांट, प्लीज पुट इट ऑन अ डायरी, स्क्राइब इट, लिखिए उसे। टेम्परेचर की चार्टिंग बहुत जरूरी है। एवरी 4 आवर्स और एवरी 6 आवर्स योर टेम्परेचर शुड बी मॉनिटर्ड रिलीजियसली, वो आपको करना ही होगा। SpO2 भी आपको लिखना ही होगा, एवरी 6 आवर्स, एवरी 4 आवर्स, जो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। 4 घंटे बहुत अच्छा माना जाता है, आप नहीं कर पा रहे हो, एवरी 6 आवर्स यू शुड डू इट। BP should be monitored very religiously. Sensorium, as we say, if there is any consciousness loss or you are feeling drowsy or stupor, then it should be brought to the notice of clinician. Pulse is very important. As I said, पल्स कैसे, आपका पल्स ऑक्सीमीटर में ही आ जाता है। आपने पल्स ऑक्सीमीटर अपने मिडिल फिंगर पे लगाया और आपने देखा कि मेरा पल्स तो 140 पे जा रहा है, तो आपको फिर ये मॉनिटर करना है। एक दो बार में घबराइए भी नहीं। बहुत बार हमने ये भी देखा है, एंग्जाइटी से बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्लेयर अप कर जाती हैं। अगर मैं बहुत घबराता हूँ, मेरी थोड़ी टेंडेंसी है एंग्जाइटी की, मैं बहुत ज़्यादा गूगल सर्च करता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखता हूँ, तो उससे मैं हमेशा एंग्शियस रहता हूँ, उससे मेरा पल्स वैसे ही बढ़ा रहता है। सो नॉट फॉर दैट, कूल हो जाइए एकदम। फिर उसके बाद देखिए कि अगर मेरा अभी 110 आया है, 120 आया है, तो फिर उसको थोड़ी देर बाद देखिए। पल्स का 100 से ऊपर आना, पल्स रेट का, इट इज ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। सो इसको भी हमें हमेशा ध्यान रखना है। एंड यूरिन आउटपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम बिकॉज दीज आर दी समर सीजन्स, सो वी से कि एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड। तो अगर आप हाइड्रेट रहेंगे तो उस समय आपका यूरिन आउटपुट इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाइड्रेट ही नहीं है तो यूरिन आउटपुट अपने आप कम हो जाएगा। Then what are the advices to the patient which we give? So it's about the we say it appropriate behavior, which is about mask, absolute rest, and SpO2 and temperature, which is to be measured. ये जो रेस्ट वाला विषय है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी अपनी काफी डिस्कशंस में ये कहा है जहां मुझे मौका मिला, दैट पीपल आस्क अस कि व्हाट इज दैट एब्सोल्यूट रेस्ट? एब्सोल्यूट रेस्ट मींस रेस्ट, यू नो, इन वन डे वी हैव जस्ट 24 आवर्स, उसमें हम 8 घंटे का काम कर रहे हैं, 8 घंटे नींद लेते हैं और 8 घंटे हम आराम करते हैं, कुछ और वर्क करते हैं। सो नींद, एक साउंड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो वी नीड टू हैव दिस साउंड स्लीप। काम पे आप जाएंगे ही नहीं उन दिनों, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज व्हेन यू आर इन अ होम आइसोलेशन। सो ये जो 8-8 घंटे हैं, ये जो आपके वर्क के थे, उसके दौरान आपको एब्सोल्यूट रेस्ट चाहिए। प्लीज डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन एनी एक्टिविटी विच गिव स्ट्रेस टू योर एंटायर फिजिक। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? सो अदर फैमिली मेंबर्स के लिए हम क्या राय देते हैं? फैमिली मेंबर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर होम आइसोलेशन में है हम, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दे शुड यूज ट्रिपल सर्जिकल मास्क। प्लीज keep this thing in your mind that if there is a patient in your home, please don't use home based or those cloth based mask. तो आपको याद क्या रखना है, अगर घर में एक सिम्टोमेटिक कोविड-19 मरीज है तो बाकी लोगों को ट्रिपल सर्जिकल मास्क हमेशा लगाना है। एंड दिस ट्रिपल सर्जिकल मास्क इज ओनली फॉर 6 to 8 आवर्स, बस 6 से 8 घंटे में एक ट्रिपल सर्जिकल मास्क यूज होगा। और उसे डिस्कार्ड करने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस डिस्कार्ड करने के लिए उसको क्या करेंगे, हम 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट में रख देंगे। सो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट में डालने के बाद ही वो डिस्कार्ड होगा, यू शुड नॉट डिस्कार्ड इट। दिस सेम थिंग शुड अप्लाई फॉर दी फॉर दी मास्क ऑफ दिस कोविड-19 पेशेंट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज आ रही है कि हम बहुत बार मुझसे सवाल पूछते हैं लोग कि बताइए क्लोज कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं? पेशेंट्स जैसे मेरे घर में ही मेरे फैमिली मेंबर को ये हो गया है कोविड, तो मैं किसको क्लोज कॉन्टैक्ट कहूँ? देखिए, हम डॉक्टर्स ये मानते आए हैं कि 15 मिनट से कम का अगर कांटेक्ट है और उस समय हमने अपने आप को बहुत तरीके से सावधानी से रखा हुआ है, ट्रिपल सर्जिकल मास्क है या हमने डबल, अब तो डबल मास्क पहनने की बात चल रही है घर में भी अगर कोई कोविड-19 मरीज है, सो हमने डबल मास्क पहना हुआ है, 15 मिनट से कम हम इंटरेक्ट कर रहे हैं और उस समय वेल वेंटिलेटेड रूम है, रूम में वेल वेंटिलेशन है, एसी नहीं चल रहा है, देन नथिंग टू वरी अबाउट। बट अगर इससे ज्यादा का आपका कांटेक्ट हो रहा है एंड आपका कहीं भी ब्रीच आपको लग रहा है कि आप ने मास्क नहीं पहना है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं था, रूम सर्कुलेट जो हो रही है एयर रूम में वो ढंग से नहीं हो रही है, देन इट इज ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। सो कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई अब अंडर मेडिकल सुपरविजन, पहली बात तो आता है कि अब घर में हूं तो डर तो लग रहा है, तो दवाई लूं या नहीं लूं? दवाइयां ले लें, कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की, क्योंकि एक तो आपका एंग्जाइटी को वो हटाएगा और दूसरा
कुछ सुपर जो इम्पोज्ड इन्फेक्शंस होते हैं उनसे आपको बचा सकता है. सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स विच आर टू बी टेकन? इट इज अ काइंड ऑफ अ थिंग विच वी से टू ईच एंड एवरीवन दैट प्लीज अंडर मेडिकल सुपरविजन ही लें, खुद अपने आप दवाई ना लें. कोई ना कोई डॉक्टर ने आपको ये दवाई लिखी हो, इंश्योर करें. उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आए हैं, आपके स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाए होंगे. एंड दैट इज अबाउट that ivermectin is found to be useful, though it is under trial again, but yes, it is said to be a safe drug. Doxycycline or azithromycin, we can take 1 out of 2. There is a guideline regarding hydroxychloroquine also. You must have heard that hydroxychloroquine should be given to the caregivers also, to the patient. But what we suggest is, friends, that if you are going for HCQ, please go for a preliminary ECG. बिकॉज इसमें क्या है, इसमें थोड़े से मिस बीट्स आते हैं या फिर कुछ बीट्स में, या जिसको हम रिदम कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है हार्ट में. वी कॉल इट एज QTC प्रोलॉन्गेशन. तो हम ये जरूर कहते हैं कि ECG एक बार कराने के बाद ही इसे करें, क्योंकि ECG की एबनॉर्मेलिटी देखने को मिली है. Then there is about all those things which are written here. Take paracetamol, and you can take paracetamol maximum जो amount है वो 650 mg है, and that should not be taken more than 4 times in a day. It's the maximum limit. Few vitamins, zinc and vitamin D3 are said to be there, and the supportive treatment for cough and diarrhea. Now currently government has also issued guideline कि आपको जब बहुत ज्यादा खांसी आ रही होती है तो एक इनहेलेशन होता है, उसको ब्यूडिसोनाइड का कहते हैं, आजकल बहुत अवेलेबल है. सो दैट शुड आल्सो बी टेकन व्हेन यू आर देयर इन होम ओनली. सो ब्यूडिसोनाइड का एक विच इज नॉट रिटन हियर, वो मैंने लिखा नहीं है, बट यस इट इज नाउ इन गाइडलाइन. यू कैन टेक दैट ब्यूडिसोनाइड इनहेलेशन आल्सो. कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? Now these are some of the general measures जो अभी सर बात कर रहे थे, प्रोफेसर भी सूर्या जब शुरू हुआ कि भाई और क्या जनरल मेजर्स ले सकते हैं. एक तो ये कि उस समय कोशिश करें, वैसे अब बहुत गर्म समय चल रहा है, बहुत गर्मियां हैं, तो ल्यूक वार्म वाटर पीना मुश्किल होता है, बट ट्राई कीजिए ल्यूक वार्म वाटर हो, बहुत खौलता हुआ पानी ना हो, बट ल्यूक वार्म वाटर कैन बी टेकन. Daily practice of yogasana, pranayama, meditation, these are said to be very good because lung capacity expand होती है, and this is said to be a very good thing which should be done. एंड स्पाइसेस हैं, जैसे बात की गई है, अभी सर कह रहे थे हमारी जो स्पाइसेस है जैसे हल्दी हुई, इनमें ये माना गया है कि दे हैव गॉट सम काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, सम काइंड ऑफ एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज, एंड Ayurveda is working on it, Siddha medicine is working on it, and they are said to be very good. Like all these medicines which are written here, decoction, herbal teas. But problem क्या आ रही है, जो भी हमने देखा है कि मरीज उसको बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहा है. So quantity is very important, friends. We have seen people who have developed a kind of a gastritis after using all these. So कहते हैं हर जो अधिकता होती है, जो excess है, everything is very bad. So that is something which is very important. So what you need to remember is that take these, but after consulting with your Ayurvedic doctor, with Siddha doctor, how to take that. This golden milk is very, I don't know, I remember my dadi used to give, my mother used to give it to us. And this is said to be a kind of a very good thing which they say when they say it as haldi wala doodh, and we find it very effective. But yes, अगर आप कहते हैं scientific इसके literature क्या available है, Ayurveda is working on it, holistic medicine is working on it, and definitely इसके कुछ ना कुछ फायदे देखने को मिले. So can we go to the next slide, please? ओके, सो व्हेन टू डिसकंटिन्यू होम आइसोलेशन. अच्छा, बीच में मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि बहुत बार अभी आपने एक प्रोन पोजीशन की भी बात सुनी है कि भाई मुझे पेट के जो बल है वो लेट जाना चाहिए, प्रोनिंग पोजीशन, अगर मुझे अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है. यस, देयर आर गाइडलाइंस एंड नाउ इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट कि अगर आप को कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी नहीं है, तो या फिर आपको फॉर एग्जांपल फ्यू कंडीशंस लाइक बहुत ज़्यादा ओबेसिटी नहीं है जिसमें आप पेट के बल नहीं लेट सकते हैं, तो इट इज ऑल्सो सजेस्टेड दैट एवरी हाफ एन आवर अगर आप अपने लेटते वक्त कभी प्रोन हो जाए, कभी सेमी प्रोन हो जाए, तो उससे भी ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ती है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मैनेवर जो मैं अभी बताना भूल गया था आपको, बट आई रिमेंबर नाउ. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज डन ओवर देयर, एंड यू कैन गेट इट इन योर होम, एंड आप उसमें आराम से लेट सकते हैं. अब ये सवाल आ रहा है कि क्या मुझे होम आइसोलेशन में मैं अपने आप को कब मान लूं कि मैं ठीक हो गया हूं, क्या मुझे दोबारा टेस्ट कराना चाहिए? बिलीव मी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट नीडेड. कोई जरूरत नहीं है रिपीट टेस्टिंग कराने की. आपको कोई नेगेटिव होने के लिए दोबारा से आरटीपीसीआर नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है. याद क्या रखना है आपको? पहला तो ये कि जिस दिन आपका सिम्टम चला जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला आपने चार्टिंग की हुई है, आप रोज चार्ट बना रहे हो और आपने देखा चार्टिंग में अब नो फीवर आ रहा है 3 दिन से. जब नो फीवर फॉर रेस्ट फॉर लास्ट 3 डेज हो जाए, नो फीवर फॉर लास्ट 3 डेज, इट इज सेड टू बी आउट ऑफ डेंजर, तो उसको हम ये मान लेते हैं सब ठीक हो गया.
बट मैं अभी आपको बताऊंगा। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको चार्टिंग कंटिन्यू नहीं करनी है। बिलीव मी फ्रेंड्स, प्लीज आपको यही बात ध्यान रखनी है, चार्टिंग तो आपको 17 दिन तक करनी है। The charting should continue till 17 days. Why? Because I told you earlier that first of all there is a phase of viral replication. उसके बाद आप ठीक हो गए, बट उसके बाद बॉडी ने इम्यून रिएक्शन शुरू की। किसी किसी की बॉडी हाइपर इम्यूनिटी पे चली गई, साइटोकाइन स्टॉर्म पे, तो वो पता ही नहीं चलेगा। एक कंडीशन होती है, आपने सुना होगा टीवी पर भी, बहुत ज्यादा मीडिया में भी, उसे कहते हैं हैप्पी हाइपॉक्सिया। सो व्हाट इज हैप्पी हाइपॉक्सिया? हैप्पी हाइपॉक्सिया ये कहती है कि 7 दिन हो गए, मैं ठीक हो गया था, बिल्कुल मुझे अच्छा लगने लगा, मैं सबसे बात कर रहा था, लेकिन जब अचानक मैंने किसी से कहा कि लाओ आज मैं अपना पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नाप लेता हूं, तो वो 80 था, वो 75 था। इसी को कहते हैं हैप्पी हाइपॉक्सिया। दैट मीन्स आपको क्या करना था, आप भूल गए, आपको अपनी मॉनिटरिंग करनी थी कंटिन्यू। बॉडी ने क्या किया, रिएक्शन शो करनी बंद कर दी। बॉडी रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बहुत इस तरह से हो गई, हाइपर इम्यून, उसने साइटोकाइन स्टॉर्म दे रखे हैं। सो नाउ द प्रॉब्लम इज, हैप्पी हाइपॉक्सिया में पेशेंट ऑलवेज फील गुड, बट उसके जो मार्कर्स हैं वो सारे डिरेंज मिलते हैं। So after these 7 days also, you need to monitor your charting. बट जैसा मैंने यहाँ पे बोला कि 10 दिन बाद आप केयर फ्री हो सकते हैं, इसलिए कि भाई चलो ठीक है, सब कुछ सही हो गया, मैं चार्टिंग करता रहूंगा। लेकिन अगर आपका बहुत अर्जेंट वर्क नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल हम डॉक्टर्स हैं, हम डॉक्टर्स 10 दिन बाद या 12 दिन बाद ज्वाइन कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द क्रंच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। बट अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो हम सबको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम टू 17th डे प्लीज स्टे एट होम। 17 दिन तक घर ही रहें, कहीं ना जाएं। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जिसको पोस्ट कोविड 19 सीक्वली कहते हैं। अब इसे समझते हैं, और मैं इसे थोड़ा सा जल्दी लेने की कोशिश करूंगा क्योंकि आपके सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, दो चीजें होती हैं, एक पोस्ट अक्यूट क्रॉनिक, एक पोस्ट अक्यूट कोविड 19 और एक क्रॉनिक कोविड 19। आप सोचेंगे क्या है इसका मतलब? देखिए, जिस दिन मैं सही हो गया, उस सही होने से 3 हफ्ते यानी 3 वीक्स मुझे लगते ही हैं पूरी स्ट्रेंथ आने में। मैं बीमार था, मुझे अभी कोविड 19 हुआ था, तो आप मुझे पूछ सकते हैं तो कब तक अपने आप को मान लूं कि मैं एकदम ठीक रहूंगा, या कब तक मैं ये मानता रहूं कि मेरा शरीर हमेशा माइल्ड है, जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से यू ऑलवेज फील कि देर इज, मैं कि बहुत थका हुआ हूँ, मेरे को ताकत नहीं आ रही, ये कब तक मुझे लगता रहेगा? जिस दिन आप सही होते हैं, डिक्लेयर्ड क्योर, उस दिन से आपको माइल्जिया 3 हफ्ते तक रहता है, यानी कि 21 दिन आपके जाते हैं ऐसे, सही होने के भी 21 दिन बाद आप हमेशा अपने आप को फील करते रहते हैं कि मैं उतना एनर्जेटिक नहीं हूँ। मैं जिम जाता था या मैं काम करता था घर का बहुत ज्यादा, अगर मैं एक हाउस जो वो हूँ कि इफ आई एम अ हाउस मेकर, होम मेकर, और मैं अगर होम मेकर हूँ, मैं घर का काम करता हूँ सारा या करती हूँ, तो आपको लगेगा पहले तो मैं कभी भी इतना काम करती थी तो थकती नहीं थी, लेकिन अब तो थक जाती हूँ। तो कब तक ये नॉर्मल है? अगर आप सही होने के 3 हफ्ते तक ये सब कुछ महसूस कर रहे हैं, नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल साइकिल ऑफ दिस डिजीज। सो यूजुअली टेक्स 21 days टू कम आउट ऑफ दिस विच वी कॉल एज माइल्जिया। बट मान लीजिए 3 हफ्ते भी हो गए हैं, 4 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप वैसा ही महसूस कर रहे हैं, तो उसे हम लोग पोस्ट अक्यूट कोविड 19 कहते हैं। बिलीव मी, इसमें फिर आपको एक बार अपनी एक जांच करा लेनी चाहिए। पोस्ट कोविड क्लिनिक्स हैं अब हॉस्पिटल्स में, यू कैन गो देयर। अभी थोड़ा सा क्योंकि देयर इज ह्यूज रश इन दी हॉस्पिटल, तो हम ये कहते हैं कि आप अपने टेलीमेडिसिन के थ्रू या अपने फैमिली फिजिशियन से पूछ सकते हैं। अब अगर ये सिम्टम्स 3 महीने भी हो गए और 3 महीने के बाद भी मेरे सिम्टम्स बचे हुए हैं, सो दैट मीन्स इट इज अ क्रॉनिक कोविड 19, एंड क्रॉनिक कोविड 19 इज समथिंग टू वरी अबाउट। आपको क्लिनिक आना जरूरी है, हम आपके कुछ टेस्ट कराएंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें अब आपका कार्डियक मॉनिटरिंग करनी जरूरी होगी, विच इज इंपॉर्टेंट। एक चीज आपको अच्छी लगेगी इस समय कि जब हम पोस्ट कोविड में होते हैं तो उस समय, but the most important thing which we need to remember is that even after the cure, after being declared as cured of COVID-19, 3 महीने बाद भी अगर मैं थोड़ा अभी भी वैसा ही खुद को महसूस करता हूं, तो मुझे डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, सो दिस इज दैट रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन। तो अब आप ये पूछेंगे भाई ये तो आप डॉक्टर हो, आपने बता दिया, बट मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे डॉक्टर से मिलना है? तो हमने कुछ रेड फ्लैग साइंस बनाए हैं, ये केरला गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन से हमने अडॉप्ट किया है इस स्लाइड को। तो आप देखेंगे तो इसमें लिखा है रेड फ्लैग साइन का मतलब है डिस्निया, मतलब सांस मेरा चल रहा है और मेरे को 3 हफ्ते हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं, बट अभी भी मुझे ना कभी कभी धड़कन बहुत दिखती है, पैल्पिटेशन जिसे कहते हैं, या मेरे को ना कभी कभी ऐसा लगता है चेस्ट पेन है, या मैंने अपनी पीडल एडिमा पाँव में देखा है, एक तरफ कभी कभी सूजन हो जाती है, या कभी कभी उठता हूं ना तो अचानक ऐसा लगता है चक्कर आ गए। ये रेड फ्लैग साइंस है।
इनको आपको हल्के में नहीं लेना है। आपको अपने पोस्ट कोविड क्लिनिक्स में अपने डॉक्टर को एक बार कॉल करना है, बताना है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, एंड दे विल वर्क ऑन इट। तो एक्चुअली वो किस चीज पर वर्क करेंगे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाता हूँ। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now these are the 5 systems which we usually work on. जब आप हमारे यहाँ क्लिनिक पर आएंगे, फॉलोअप क्लिनिक पर, we would like to examine your cardiovascular system, respiratory, nervous, mental and musculoskeletal system. Usually आपने देखा होगा, बहुत जगह आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि कोविड हुआ था उसको कुछ दिन पहले, फिर वो सही हो रहा था, बट फिर कार्डियक कुछ एबनॉर्मेलिटी हुई, कुछ सडन अटैक हुआ, एमआई हुआ। सो दीज आर दोज सिचुएशंस, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में होती हैं, बट घबराने की बात नहीं है। जैसा मैंने कहा, हमें इस बात का ध्यान रखना है, एंग्जाइटी नहीं रखनी है। मैक्सिमम ऑफ अस विल कम आउट ऑफ दिस कंप्लीटली क्योर्ड। लेकिन कुछ लोगों में हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं, तो उनके लिए हम उनके ईसीजीज कराते हैं, हम उनकी एको कराते हैं, एकोकार्डियोग्राफी होती है, या रेस्पिरेटरी में हम आजकल स्पायरोमेट्री इज नॉट अलाउड, बट येस ड्यूरिंग दी पोस्ट कोविड जब हम वर्कअप करते हैं तो उनके हम कुछ स्पायरोमेट्रीज कराते हैं, कुछ हम टेस्ट कराते हैं जो उनके नर्वस सिस्टम को डिफाइन करता है, और एक साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। एज आई सेड, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी कोविड में आ रही है वो घबराहट की है, डर की है, साइकोलॉजिकल हमारे स्ट्रेसेस हैं, डिप्रेशन है, तो हम एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं। एंड वी ऑल्सो रेफर दीज पेशेंट्स टू पीएमआर डिपार्टमेंट, जहां पर फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन उनके कुछ मस्कुलोस्केलेटल चेक्स करता है। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो व्हाट आर दी सपोर्टिव थिंग्स। अब आप कहते हैं कि भाई फिर करते क्या है, क्या करना है इसमें, फिर अगेन वही आती है, कुछ पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मरीजों को कहा जा रहा है कि भाई आप ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपके लंग्स एक्सपेंड हो, जिससे ऑक्सीजन सैचुरेशन में आगे प्रॉब्लम्स ना आए। इस तरह से आते हैं बहुत सारे स्पायरोमीटर्स आते हैं, आपने देखा होगा कि एक नली आती है, उसमें वो बॉल्स हैं और आपको उसमें हवा भरनी है, या गुब्बारे जैसा एक आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट आता है। सो उससे हम क्या करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ पल्मोनरी rehabilitation exercises which we request all post-COVID patients to do because they need to increase their vital capacity. योगा या प्राणायाम, जैसे हम सब कहते आए हैं, होलिस्टिक मेडिसिन की बात है, वो बहुत जरूरी है और वो करते रहना चाहिए। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो एक और चीज हमसे बहुत बार सवाल करते हैं लोग कि यार मैं तो ना पहले बहुत काम करता था, तो अब नाउ इट्स द टाइम एंड आई एम ओके, शुड आई रिज्यूम वर्क? नो, यू शुड रिज्यूम वर्क वेरी ग्रेजुअली। ऐसा नहीं, अगर आप पहले 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करते थे, या चलते थे, या फिर जिम जाते थे, या फिर साइकिलिंग करते थे, या फिर घर में ही ट्रेडमिल करते थे, तो वो एकदम से रिज्यूम नहीं करना है, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट रेडी टू डू इट। सो ये कुछ जैसे चीजें लिखी गई हैं, यूनिवर्सिटीज ने इसमें हमने रिसर्च किए हैं, तो उनमें पता चला है दैट वॉकिंग, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक में आप 5 मिनट 5 बारी करें, सेकेंड वीक में 10 मिनट 3 बार करें, थर्ड वीक में 15 minutes 2 times करें। सो व्हाट एग्जैक्टली दीज आर टेलिंग, दैट ग्रेजुअल रिजम्पशन ऑफ वर्क एंड नॉट दैट यू आर रिज्यूमिंग योर वर्क in the same capacity you were doing earlier. So that is something which is there. Monitoring is very important, as I said. पल्स ऑक्सीमीटर लगाते रहे। एक चीज मुझे आपको जरूर बतानी है पल्स ऑक्सीमीटर को लेकर, कि आजकल पल्स ऑक्सीमीटर की एक और प्रॉब्लम आ रही है, एंड दैट इज समथिंग विच इज that people are getting fuss about pulse oximeter every hour में, 1 घंटे में वो एक बार में लगा लेते हैं। प्लीज डोंट डू दिस, बिकॉज दिस विल क्रिएट मोर एंशियसनेस देन पॉजिटिविटी। ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर ओनली 4 आवर्स में वंस या 6 आवर्स में वंस यूज करना है, नॉट लाइक दिस। एक आपने देखा होगा 6 मिनट्स वॉक टेस्ट की बात आपने बहुत सुनी होगी, कि एक 6 मिनट्स वॉक टेस्ट है। वो क्या है, वो ड्यूरिंग कोविड-19 की जब आपको बीमारी हो रही होती है, होम आइसोलेशन में करना होता है, कि आपको लग रहा है कि आपकी सांस फूल रही है और आपको ये डॉक्टर को बताना है कि मेरी कंडीशन कैसी है, तो वो आपको कहेगा ऐसा करिए, पहले आप एक पल्स ऑक्सीमीटर लगा लीजिए और आप अपना देख लीजिए कि SpO2 कितना है। मान लीजिए वो 92 है, फिर उसके बाद वो आपको कहता है कि 6 मिनट वॉक करिए, और वॉक करने के बाद फिर लगाइए। अगर 5% फॉल हो रहा है आपके अर्लियर से इसमें, देन इसका मतलब ये होता है कि आप माइल्ड से मॉडरेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो आपको डॉक्टर को बताना होता है। बट जब आप नॉर्मल रूटीन में होते हैं, प्लीज डोंट डू इट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आधे लोग यही कर रहे हैं, सुबह शाम सोते जगते दे आर डूइंग इट, इवन वॉचेस में आ गया है, सो दे आर डूइंग इट एंड दे आर कॉलिंग अस दैट हमारा पल्स जो ऑक्सीमीटर है वो ऑक्सीजन का सैचुरेशन शो कर रहा है डिफरेंट। प्लीज डोंट गो बाय दैट, ओनली एज पर प्रिस्क्राइब्ड वही करिए। पोजीशनिंग की बात इसमें लिखी गई है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट, एंड दिस इज अबाउट प्रोनिंग। प्रोनिंग जो होती है वो कहते हैं, बहुत सारे ऐसे आसनास भी हैं, वी ऑल्सो डू दैम इन योगा व्हेन आवर योगा इंस्ट्रक्टर्स टेल अस दैट जब हम पेट के बल लेटते हैं और उससे हमें फायदा होता है ड्यूरिंग आवर रेस्पिरेशन एंड चेस्ट एक्सपेंशन।
Can we go to the next slide, please? I think हम लोग लास्ट की तरफ बढ़े हैं. I think this is the last slide for today. So कुछ होम बेस्ड केयर पे कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ने भी बनाई है, जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने बनाई है, एंड वी आर आल्सो आस्किंग रिक्वेस्टिंग देम टू शेयर विद अस. तो ये बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप होम बेस्ड केयर में कर सकते हैं व्हेन यू आर इन योर पोस्ट कोविड टाइम, जब आप पोस्ट कोविड में हो, कोविड आपका खत्म हो गया हो, आपने यू हैव बीन डिक्लेयर्ड एज क्योर्ड बिकॉज आपको 10 11 12 दिन 15 दिन हो चुके हो, तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेज जरूर कीजिए. जैसे इसमें लिखी है सिट टू स्टैंड, साइड स्टेपिंग, स्टैंडिंग, मतलब वही जो आप घर में आराम से कर सकते हैं. यू कैन डू दीज एक्सरसाइजेज वेरी वेल. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये उस समय नहीं करनी है जब आपको कोविड हुआ है. ये पोस्ट कोविड के वक्त है, क्योंकि पोस्ट कोविड इज ऑल्सो इक्वली डिस्ट्रेसफुल एज COVID time. So this will also definitely help in getting resumption of our work or activities which we were doing earlier during COVID or before COVID. So I think we are moving toward the last part. So this is my last slide, and I'll take all those things which Professor Surya said earlier, and that was about integrated holistic approach. So integrated holistic approach में वही है, हम आपसे दोबारा से ये रिक्वेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ उन्हीं को सुनिए जहां पॉजिटिव खबरें आ रही हैं. Though we know that it's a hard time and we understand that the news is being pouring from each and every corner of country that we are in a very distressful situation, बट हमारा दिमाग अगर सुबह से शाम तक यही सुनता रहता है तो प्रॉब्लम में हो जाता है. इस समय साइको सोशल सपोर्ट की जरूरत है. हम खुद डॉक्टर्स को महसूस होता है दैट वी नीड सपोर्ट ऑफ प्रोफेशनल समटाइम्स व्हेन वी सी ऑल दीज अनफॉर्चुनेट इवेंट्स अकरिंग एवरी डे इन आवर क्लिनिक और ओपीडी. और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, योगा या मेडिटेशन, ये जो आपको रखना है. एक चीज जो मैंने इसमें डाली नहीं है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आपकी एलिजिबिलिटी हो जाए तो प्लीज वैक्सीन जरूर लगवाइए, बिकॉज वैक्सीन के अगेंस्ट भी उतने ही लोग हैं जितने वैक्सीन के साथ हैं. बट वैक्सीन इज वेरी यूजफुल. इट इज द ओनली वे टू हैव the kind of what we call it as zero protection. because एक चीज याद रखिए, एक होता है कि मुझे नेचुरल इन्फेक्शन लगा, मेरे अंदर एंटीबॉडीज बन गई हैं तो मैं वैक्सीन क्यों लूं. तो जो नेचुरल एंटीबॉडीज बनती हैं उनमें बहुत जल्दी वेन ऑफ होता है, इम्यूनिटी goes down very rapidly. But if I take vaccine, there is a confirmation at least for 6 months to 9 months मुझे protection मिलने वाला है, which is of the level that I may not get दैट सीवियर डिजीज. क्योंकि लोगों ने ये कहा कि भाई मेरे को वैक्सीन लगी एंड आई गॉट इन्फेक्टेड, तो क्या फायदा हुआ. ठीक है, हो सकता है आपको वैक्सीन के बाद इन्फेक्शन हो गया हो, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि जिनको वैक्सीन लगी है दे हैव नॉट गॉन टू दैट लेवल ऑफ सीवियरिटी. सो अभी तो सीवियरिटी से खुद को बचाना है. इस समय जो देश में इन्फेक्शन का रेट है उसमें एक चीज तो तय है कि हम सबको ही कोई ना कोई छोटा या बड़ा इन्फेक्शन लगने ही वाला है. सो वी नीड टू कीप आवरसेल्फ सेफ, बट एट द सेम टाइम वी शुड take this oath that whenever there is a time for us to take vaccine, जब भी availability होगी, logistics हमें allow करेंगे, we will take vaccine because that is the only way out. So I think we are done with last slide. Can we go, Mr. Thapa? Yeah, this is about the COVID appropriate behavior, which I would on behalf of every one of us will say to each and every of one of us कि तीन चीजें हमें ध्यान रखना है. That mask is, I think it's the best solution. If we are having this mask and now currently double mask, it will help us in getting saved ourselves from the infection. Number two is proper hand hygiene and etiquettes of respiration, or we call them as sneezing etiquettes or respiratory etiquettes or cough etiquettes, and vaccines, which are very important. और social distancing या जैसे physical distancing कहा है, that is very important, which is very important for all of us to understand. So I think I end my presentation here, and this is about that protective measures which we have talked about. Ministry is saying, I think you're through NIDM also, you are spreading the same messages to masses and community. But if you ask me last में जाते जाते कि अगर एंड करना है तो मुझे मैं क्या 3 या 4 चीजें आपको कहूंगा. पहला, होम आइसोलेशन में अगर हम हैं, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करें, पर एट द सेम टाइम वी शुड बी मॉनिटरिंग आवर सिम्टम्स. कि घर रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ और मुझे मॉनिटरिंग नहीं करनी है. मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है. 3-4 चीजों की मॉनिटरिंग जिसमें पहले भी बात की गई है वो बहुत जरूरी है. अगर आपका फीवर चला गया है, दोबारा लौट आया है, आपको फिर वरिड होने की भी जरूरत है. आपको कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए, विच आर दी साइटोकाइन मार्कर्स और साइटोकाइंस विच वी यूजुअली डू. एंड आपको एंशियस नहीं होना है, बिकॉज एंजाइटी एड्स टू ऑल द इश्यूज, एंड मोस्ट ऑफ अस रिकवर in mild illness only or asymptomatic illness only. And last but not the least, when there is a time for vaccine,
please take that vaccine, because this is the permanent solution for currently, with the current evidence, that we will not get a severe infection. We may get infection, that is true, but we will not get a severe infection. That is very important. So I think I'm done with this. So thank you so much for being so patiently listening to or hearing to all my talks. Thank you so much.